Good morning, students. Today I am once again in front of you to discuss the lecture of mechanics differential equations. Before to discuss the differential equation, I would like to discuss one quotations written by the Stephen Stockwitz. Since Newton, mankind has come to realize that the laws of physics are always expressed in the language of differential equations. Yeah, in other words, we can express that the laws of physics are always expressed by the differential equations. If you know that in your previous classes we have discussed about the Newton's Coulomb's law, which describe the language of the differential equations. So in terms of mathematical, differential equations can be written as differential equation. Differential equation if we talk about the definition of the differential equations in mathematically, a differential equation is an equation which relates one or more function and its derivatives. One or more function and its derivatives one or more. What is the meaning of one or more function and its derivatives? The one or more functions means here in the differential equation that it defines generally the physical quantities. Physical quantities, you have so many physical quantities such as pressure, temperature, area. Okay, there are so many other force, etc. And its derivative defined here that represents their rate of change of. So we can conclude that, we can say that the differential equation is an equation that relates one or more functions and its derivatives. Okay, we can say that the differential equation is a very prominent role in daily life in many disciplines like as physics, economics, biology, engineering. Okay, अब दूसरी जो डेफिनेशंस है जो हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो किस वे में लिखते हैं अगर आपको बताएं. देखो, वी कैन टेक द एग्जांपल dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हो. सपोज आई टेक द फंक्शन fx. आप fx लिख सकते हो, आप gx ले सकते हो, आप yx ले सकते हो, व्हाटएवर यू कैन टेक. हियर dy अपॉन dx इज इक्वल टू fx. सो in here the dy upon dx, these are two variables. If we talk about the mathematical form of the differential equation, we can say that in this one variable is independent variable and other variable is a dependent variables. Here x and y. In this equation x is independent variables, and y is a dependent variables and y is a dependent variables. Okay, students, dependent variables. We can say that in other we can take the examples like this, dy upon dx is equal to 8x. ये भी हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ही है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, और ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स ले ली, dy upon dx is equal to 8x. Okay, there are so many types of differential equations. Okay, types of differential equations बहुत सारी है हमारे पास, पर हम सिर्फ वही differential equations करेंगे जो हमारे पास सिलेबस में है. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी रिटर्न कर देता हूँ, पर हम डिस्कस जो है लास्ट में डिटेल में वो स्टडी करेंगे जो हमारे पास सिलेबस में अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस. फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. इसको मैं डिफरेंशियल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख रहा हूँ. सेकंड होती है हमारे पास पार्शियल
differential equations, partial differential equations, राइट। थर्ड वन हमारे पास जो होती है उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फोर्थ वन हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, पर हम लोग सिंपली उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। और नेक्स्ट वन क्या होती है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारी जो सिलेबस में है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर syllabus and its coefficients, but before to go to study to understand the concept of the homogeneous differential equation, it's our moral duty to discuss the basic concept behind the differential equation, that is the orders and degree. So we first calculate how to calculate the degree and order of a differential equation, then we switch over to the homogeneous differential equations. Okay, then how to find out the order of a differential equations and degree. One by one we will discuss the order of a differential equations, order of differential equations. Order of a differential equation is the order of a differential equation is the highest order of a derivative, is the highest order of a derivatives of that equations, yeah, of a equations which is given equations. Order of a differential equation is the order of the highest order of the derivative present in that equations. Okay, suppose I take some examples. For examples I can take here, you can take any example, there are so many examples in this. I take simply examples, dy upon dx is equal to 3x plus 2. Suppose I take the very simple linear equations, dy upon dx is equal to 3x plus 2. So can anybody tell me the order of these equations? Yes, there are so many students, because it's very easy. The order of this equation is 1, because you see here that the d has the power 1, it means that it has 1 orders. Okay, now I can take another example, that is d square y upon dx square plus 2 dy upon dx plus 6y minus 12 is equal to 0. Can you tell me the order of this equation? Yes, we know that d square, here you have to change these points, that it has marked 2, here is marked 1, it means that order is 1. Highest derivative किसका, इसका, जिसकी पावर मैक्सिमम 2 लगी है यहाँ पे, तो then the order is 2. Similarly so on other examples भी आप लोग ले सकते हो, बहुत सारी ऐसी examples है डेली लाइफ में जहाँ पे आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हो। Now the degree of differential equations. Now the degree of differential equations. Now the degree of differential equations. Degree of differential equations. Differential is the highest order of derivatives present in that equations, present in the equations is represented by the degree of differential equations. Yeah, in other words I can say that the definition of the degree of differential equation is the highest order of derivative present in the ओरिजिनल इक्वेशन, जो भी आपके पास ओरिजिनल इक्वेशंस दी होगी फंडामेंटल। Okay, now we can take these examples of degree of a differential equation. Yeah, how we can calculate the degree of a differential equations. You see that we have seen in +2 class in mathematics. Write it here, this and in this way. If you see that it is first order derivative dy
डैश या डी प्राइम भी बोल सकते हैं हम लोग, कई बार प्राइम बोलते हैं इसको, कई बार डैश बोल देते हैं। अदरवाइज इट्स द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी y1 y डबल प्राइम एंड y ट्रिपल प्राइम या y ट्रिपल डैश। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे डबल सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव ऑर्डर्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर्स है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी जो डिग्री है वो कैसे है। सपोज आई टेक वन एग्जांपल्स हियर, dy अपॉन dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज मैं ऐसी कोई भी एग्जांपल्स ले सकता हूँ जिसमें मुझे डिग्री निकालनी है। तो इस केस में हमारी जो डिग्री है वो कितनी आ सकती है स्टूडेंट्स? क्यों, कोई भी बच्चा बता सकता? यस, इट्स वेरी सिंपल, डिग्री इज 1। ओके, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं? यस, हम ले सकते हैं, बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सपोज मैं ऐसी कोई एग्जांपल्स ले सकता हूं, दिस प्लस y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसकी अगर डिग्री निकालनी है तो कितनी है इसकी पावर? 3। तो इसकी जो डिग्री आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 3। In this way we have some methods, we have some prominent rules in which we can calculate, we can measure the degree of a differential equations. Okay, now some applications of the differential equations. Okay, after that we are come to the points of the homogeneous differential equations या homogeneous first order differential equations, which is our in syllabus, yeah, which is an important part of the physics in mechanics portions. Okay, some applications. There are lot of applications in differential equations. फिजिकल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी फिजिकल एप्लीकेशंस होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे पास जो ग्रोथ और डिकेज होते हैं वो हम लोग यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन से ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब वेरियस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिकेज। अगर मैं उसका ग्राफ बनाता हूं आपको, अगर आपको कोशिश करता हूं ड्रा करने की, ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स है मेरी, ये मेरी डीके कर्व है, डीके कर्व है और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो यहां से हम लोग जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स है तो कभी डीके हो सकता, कभी एक्सपोनेंशियल्स हो सकता। तो इसमें भी हमारे पास जो है इसकी एक एप्लीकेशंस आती है। सेकंड जो एप्लीकेशंस आती है वो हमारे पास किसकी आती है? चेंज इन रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट। जितनी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिटर्न आता है उसका, जैसे मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में 1 लाख कर दिया 1 ईयर्स के लिए, उसके बाद जो इंटरेस्ट प्रोड्यूस होता है या इंटरेस्ट मुझे मिलता है वो इंटरेस्ट मैं फिर ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट बन जाता है, फिर मैं सेकंड ईयर के लिए उसको फिर इन्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं थर्ड ईयर के लिए करता हूँ, ठीक है। वो मेरी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट ओवर रिटर्न्स होगी, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया होता है, उस शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद मान लो मैंने 1 लाख लगा दिया, उसके बाद 1 साल के बाद जो उसका रिटर्न मुझे मिल रही है वो सपोज 80% मिल रही है। तो इस वे में हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हेल्पफुल है टू कैलकुलेट दी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। मोरओवर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन electricity, movement of current, movement of electricity, which is the fundamental of our physics। तभी तो हम फिजिक्स में इसको रिलेट कर रहे हैं, तभी हम फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का देखें, इसमें क्या एप्लीकेशन थी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस we denote the current is I and it is nothing but it is the rate of change of, okay, the rate of change of this charge। तो देखो ये भी तो वैसे इक्वेशन ही बन गई, d is equal to dy upon dt की तरह नहीं बन गई जैसे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। सिमिलरली वैसे ही तो है। अगर मैं इसका क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा तो एक पोर्शन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, मूवमेंट ऑफ करंट मिल जाएगा। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो वही करते हैं, किसी का एक मूवमेंट का एरिया लेते हैं ना, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी सेम चीज आ रही है। ऐसे हमारे पास इट इज आल्सो हेल्पफुल इन द मेडिकल साइंस। इफ यू सी दैट देयर इज ए नंबर ऑफ केसेस इन cancer disease, so how we can calculate the number of disease patients infected by the cancer disease? So it can be also calculated by some modeling of that. We can pick some models, we can take some model of a particular region या particular area या number of the patients we can take, just like as the examples of the COVID-19।
कोविड-19 में आपने बहुत सारे देखा होगा कि अभी बहुत पेंडेमिक चला हुआ, पूरे वर्ल्ड में चला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अभी देखो ना ही तो इसकी वैक्सीनेशंस आई है, ना ही हम इसके पूरे प्रॉपर सिम्टम देख रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सैंपल साइज ले रहे हैं। सैंपल साइज जब लेते हैं हम लोग, तो सैंपल साइज में क्या करते हैं, पार्टिकुलर 100, पार्टिकुलर 1000, 2000, 4000 हम लोग एक रैंडम सैंपल उठा लेते हैं। उन सैंपल पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर अपनी जो वैक्सीनेशंस है वो ट्राई करते हैं। अब वो क्लिनिकल जो ट्रायल होता है उसमें हमें पता लग जाता है कि कितना उसका सक्सेस रेट है। जब ऐसा सक्सेस रेट आता है तो वहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, एक मॉडल बन जाता है। वो मॉडल जो है वही हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ क्योरमेंट्स, ट्रीटमेंट्स ऑफ ए मेडिकल साइंस। वन मोर एग्जाम्पल इन फिजिक्स इज ऑल्सो देयर, द मोशन ऑफ वेव्स विच इज स्टडीड इन अवर +1 या पेंडुलम। ठीक है, ये ऐसी सारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस है बहुत वाइड है, हर जगह हर एक फील्ड में यूज़ होती हैं। अब एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरा मतलब बोलने का यहाँ अगर मैं इक्वेशन भी बोल दूँ तो इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आपने देखा होगा, आपके पास कभी घर में आपने क्या किया होगा, कभी कॉफी का हॉट मग देखा होगा सभी स्टूडेंट्स ने, यस। तो जब आप कॉफी का मग लेके आते हो उसको, तो वो बहुत गर्म होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उस कॉफी के मग को किसी एक जगह पे रख देते हो, टेबल पे रखते हो या कुछ। अब कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो, कुछ टाइम के आप क्या देखते हो कि उसमें कूलिंग शुरू हो गई है। तो वो जो कूलिंग है वो फिजिक्स का लॉ है जो हमने +1 में भी पढ़ा होता है, +1 में पढ़ा है। वो कौन सा था, न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ ऑफ ए बॉडी। कूलिंग लॉ ऑफ ए बॉडी क्या होता है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अब बिटवीन देम कौन कौन सा, सपोज एक टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या हॉट बॉडी जिसको हम बोलते हैं, बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो उसकी सराउंडिंग्स आपने ली हुई है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको टेम्परेचर में T से डिनोट करता हूं और इसके टेम्परेचर को मैं T0 से डिनोट करता हूं। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि dt अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, या नॉर्मल जो पोजीशंस होती है। Okay, so dt upon dt directly proportional to T minus T0. This is also in the form of linear differential equation. Now come to the points of the homogeneous differential equations. Now the homogeneous differential equations, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है और इट इज द बेसिक ऑफ for the physics, homogeneous differential equation। देखो जैसे तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके वेरिएबल्स जो वो सेम रहते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं कि वो हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। या फर्स्ट मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। homogeneous differential equation, homogeneous differential equation, suppose we take the function f of a variable x and y, dy is equal to another function g have variable x comma y with respect to dx. The differential equation in the form of function f variable x and y with respect to dy is equal to another function g having the variable x comma y with respect to dx is said to be homogeneous differential equation in which f x y is equal to gy, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूं r सेम, या इन दोनों को मैं इज इक्वल टू कर दूं तब भी एक ही बात है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि f x, y
and gx, y are same. The most important thing is here how to calculate the होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या अगर आप हमें क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो डेफिनेशन बहुत कम आती है, रेयर्स आती है, एग्जामिनर क्या करता है इज इन ए ट्रिकी वे ही ट्राइड टू solve that equations. He put an example, he put an numerical in our course, in our paper, how to calculate the homogeneous differential equation. तो इसके लिए मैं आपको वो शॉर्ट मेथड बताता हूँ, 4 or 5 थिंग्स जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताता हूँ और उन्हीं स्टेप्स को हम करेंगे फॉलो। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हीं 5 स्टेप पे बेस पे हम सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोज कोई भी हमें क्या करता है, कोई गिवन इक्वेशंस देते हैं हमें, गिवन कौन से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गिवन इक्वेशन का मतलब है यहाँ मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोई भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो dy अपॉन dx कोई भी आप ले सकते हो। f x इज ए वेरिएबल, f इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू z इज ए फंक्शन y अपॉन x, ऐसी कोई भी इक्वेशंस हमारे पास आ सकती है। सेकेंडली क्या होता है उसके बाद, अब सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, इसको नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स क्योंकि ये बार बार यूज होता है। फर्स्ट जो स्टेप्स होता है आपने सबसे पहले क्या करना, सब्स्टिट्यूट्स करना है। सबसे पहले आपने क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू bx, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू bx करना। अब स्टेप 2 में क्या करना हमने, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन आपने क्या करना, पॉइंट्स डिफरेंशिएटिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं कुछ नहीं लिखा, मैंने डिफरेंशिएटिंग लिख दिया ओनली। अब आपको क्या करना, जब एग्जाम होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो उसके साथ वेरिएबल लगा होगा, t लगा होगा, x लगा होगा, z लगा होगा, m लगा होगा, जैसा आपको लगा होगा उस इक्वेशन वैसे ही सब्स्टिट्यूट करना आपने। अब मैंने यहां सिर्फ इतना लिखा कि डिफरेंशिएटिंग b गेट, जैसा वेरिएबल होगा हम वैसा कर देंगे, पर यहां मुझे पता है मेरे पास कौन सा x, तो मैं x से ही करूंगा। तो इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने प्लस 2 में क्या किया, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है। अगर हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाता है कि b और x आता है तो हम क्या करते हैं, ये दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी सा भी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dx अपॉन, अब मेरा यहां भी वेरिएबल dx से ही कर रहा हूं मैंने, यहां भी x था तो dx अपॉन dx आ गया, प्लस अब मेरा सेकंड फंक्शन एज इट इज है, मैंने ऐसे का ऐसा लिख लिया। अब डिफरेंशिएट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मैंने, अब देखो अगर आप ये करते हो तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी 1 आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटे, b प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ऐसे लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं कि नहीं, यस लिख सकता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब dy अपॉन dx क्या है, किसके बराबर है, आपको पता है y इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x, g इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन। अब देखो आपने क्या लिखा है, अगर मैं y अपॉन इसको, इस इक्वेशन को y अपॉन x लिख दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, b। तो मैं क्या कर सकता हूं, dy अपॉन d, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, gv लिख सकता हूं, ओ भाई लिख सकता हूं, यस, क्योंकि देखो dy अपॉन dx इधर भी है, इधर g y अपॉन x है। अब मैंने इसको चेंज कर लिया तो b आ गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, ये लिख सकता हूं, यस। तो b प्लस x dv अपॉन dx ऐसे लिख सकता हूं, यस। अब इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं सिंपली रीअरेंज करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब रीअरेंज में क्या करता हूं, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू gv माइनस b लिख सकता हूं, यस, क्योंकि मैं सिर्फ इसको b को इधर ले रहा हूं, दूसरी साइड सारी सेम वैल्यूज रख दी है मैंने, ऐसा लिख सकता हूं, यस। अब थर्ड जो अगला स्टेप जो आता है मेरे पास, थर्ड स्टेप है, मैं इसको भी रब कर रहा हूं थोड़ा सा due to limitation of the blackboards. Okay, you have I think you have note down these equations, yeah, these steps now because it's very important for our calculation. Okay, step number 3. Step 3 में हमने क्या करना, सेपरेट करनी है वेरिएबल्स अपने, separating the variables.
सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को मैं सेपरेट कर दूंगा। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब कि x वाले मैं एक साइड ले जाऊंगा और y वाले दूसरी साइड ले जाऊंगा। मैं ये सारे रब कर रहा हूं, सिर्फ मुझे ये इक्वेशन चाहिए तो मैं इतनी सी इक्वेशन रख छोड़ता हूं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको इंटीग्रेट करके। अब हमारे पास क्या गया, सेपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या आएगा, dv अपॉन dgb माइनस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन x आ गया। मैंने रीअरेंज इक्वेशंस कर ली, dv मेरा इधर चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया मेरे पास, स्टेप नंबर 4, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं, टोटल एक पार्टिकुलर रीजन का जब एरिया निकालना होता तो मुझे इंटीग्रेट करना होता। तो मैं क्या करता हूँ, उस पार्टिकुलर एरिया जो निकालना होता कि कहाँ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है, तो उसको हमने इंटीग्रेशंस कर दिया, वी गेट। ओके, इस इक्वेशन को मैंने dv अपॉन gv माइनस b dv इज इक्वल टू दिस dx अपॉन x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट्स हम लोग इंटीग्रेशंस में लगाते हैं। ये फंडामेंटल रूल्स है इंटीग्रेशन का, ये भी आपने प्रीवियस प्लस 1 या 10th क्लास में पढ़ा, ठीक है। आई थिंक नो नीड टू डिस्कस हियर व्हाई वी आर पुटिंग हियर द प्लस साइन c, बट इट इज इंडिकेट दैट द कांस्टेंट्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, आफ्टर जो इंटीग्रेशंस है उसके बाद मुझे क्या करना होता है, उसके बाद मुझे सिर्फ स्टेप नंबर 5, ये स्टेप नंबर 4 था मेरा, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, आफ्टर इंटीग्रेशन भी रिप्लेस करते हैं हम लोग, इस चीज को रिप्लेस कर देंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी। आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, अगर आपको याद है, y इज इक्वल टू वो लिखा था आपने, यहां मैं v इज इक्वल टू y अपॉन x लिख देता हूं। तो मैंने फिर उसी इक्वेशन में जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, मैं जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको दोबारा x और y की टर्म में लिख दूंगा जैसी मुझे इक्वेशंस आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस या होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप you enjoy these lectures. If any doubt, you can call me on my WhatsApp number, you can write on my WhatsApp numbers. Thank you once again, students.